So it's about 8:30, right? Hmm. अभी I think just 5 minutes पहले I was searching how to change my life in one day on YouTube. And this is gonna be totally unfiltered conversation. मैं कुछ शेयर करना नहीं चाहता but it just क्या कहूँ इंट्रोस्पेक्शन इन माई लाइफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे आई थिंक लगा कि जर्नल करना ज़रूरी है. एंड आई डोंट यूजुअली राइट, आई ट्राई टू राइट बट आई एम नॉट रियली सक्सेसफुल एट राइटिंग. सो जर्नलिंग और व्लॉगिंग में आई थिंक फ़र्क है. एंड this might be a vlog, but I might tell that it's a journal. So if you guys are watching this, it's a pretty boring video. If you don't want to watch it, then you can skip this video and go ahead. So कुछ दिन पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी, it was about this प्रोजेक्ट 50 चैलेंज, जिसमें कुछ 5 रूल्स थे जो मैंने उस वीडियो में बताया. एंड आई डिड इट फॉर लाइक वन वीक और सो, आई डोंट नो, बट आई फेल्ड मिजरेबली. तो मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था उस वीडियो में, और उस वीडियो के कमेंट में ये लिखा था कि व्हाट्स द अपडेट लाइक. So, update is this. I have not been improved. I'm just still stuck at so many things. मैं ये चीज़ें बोलते रहता हूँ, but I just realized to introspect a little bit about this and share it in my YouTube. So, what I was doing this past months, it was a very very productive year for me. हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट किया. इट्स नेम इज़ मेरा. I'm still editing that film. मतलब that film was it's still like a life lesson. It's still like a lesson for me. Not life lesson, but as a filmmaker, it's still it's a lesson for me, because उस फिल्म में बहुत fuck ups हुए थे when we were shooting. bad weather conditions थे, बहुत बारिश हो रही थी, and I was still, because I thought like I can make a film, so I made it. And it wasn't my story, somebody किसी और ने लिखा था वो story, and I saw it as a project, you know. I saw it as a challenge, because how I work as a filmmaker is मेरे दिमाग में कुछ कहीं से कुछ you know ideas आते हैं, and I just visually see the clarity of every thought. I see that clearly. But in this project it was like more of a collaborative thing. We were collaborating with a lot of actors, and like a lot of things जो मेरे लिए नहीं थी. खैर, that happened, but due to this fuck ups, and I realized this कि still filmmaking is not an easy thing to do. I have made short films about 10 to 13 minutes की films मैंने बनाई थी पहले, but this was a bigger one. I targeted कि मुझे story और screenplay से हमारा complete हुआ. It seemed like कि I think 25-30 minutes की होनी चाहिए, but when I मतलब जब मैं edit करने बैठा तो उसमें मुझे realize हुआ कि क्या क्या गलतियाँ मेरी as a director थी. But we can't do it. We can't मतलब I can't do it, obviously. I can't made it. But apart from like I saw it as a failure kind of, but still I have chance कि editing में इसको उठा दूँ. But it's not gonna
I think it's gonna happen. But the point is, I'm realizing this key. It's not an easy thing to do. Filmmaking kind of things, it's not an easy job. So I learned. That was the first thing. Then I, after जब मैंने ये complete किया इसका shoot मीरा का, financially we were very, बहुत कुछ चल रहा था shoot के behind the scenes में, and as a director I didn't have that kind of financial support, making a film. मुझे लगा कि यार क्या चाहिए, but when you collaborate with people you need some amount of money, right? So it happened that this was the first point in my in this year जो particularly I was focused on to make a film in like a collaborative thing, like a big film, like working in a proper film जिसमें कुछ amount, at least कुछ amount budget ही हो. That happened. After then I remember last time as a student I was doing this fellowship, and this time I applied for this fellowship as a कोऑर्डिनेटर. मतलब मेरे साथ और 2-3 लोग होंगे और हमारी पूरी टीम होगी जिसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ. सो फ्रॉम किन्नौर आई एम फेलो फ्रॉम किन्नौर फॉर दिस फेलोशिप. एंड शुरू में सब सही था, बट उसके बाद थिंग्स गॉट मेस्ड अप. मैनेजमेंट आई डिडंट न्यू क्लियरली. आई वाज वेरी सेल्फ पर्सन होता ना एक, कि आई वॉज लाइक मैं कुछ स्टोरी कर रहा हूँ तो वो फिर खुद से कर रहा हूँ. मतलब मुझे आइडिया है मेकिंग दिस फिल्म, आई हैव एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें करनी कंपोजिशन से लेकर एक चीज़. दैट्स हाउ आई वर्कड. बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जो ये फेलोशिप में कर रहा हूँ, इसके अंडर मुझे आई थिंक 4 फिल्म्स बना के सबमिट करनी है 3 लोगों की टीम को. And I'm still on the process, and documentary filmmaking is a difficult job. You can't make a film in like 1 month. It takes time. It needs that time for pre-production, research करना पड़ता है आपको, एक visual idea होना चाहिए. What kind of story do you want to present as a story in your film? So I think ये सब सही चल रहा था. आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस एंड एवरीथिंग. देन द नेक्स्ट थिंग केम. इट वॉज मुझे करना था एक क्या कहते हैं, इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट. सो मैंने जो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था ये सोच के कि एक पुश मिलेगा. आई पर्सनली वॉन्टेड टू मेक दिस ईयर अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, फॉर पर्सनली फॉर मी. बट ये जो एक जंप था, एक ट्रांजिशन था ना, बिकॉज बिफोर आई वॉज वेरी सेल्फ ड्रिवन पर्सन. आई हैव अ पैशन अबाउट समथिंग, आई देन क्रिएट समथिंग फ्रॉम माई इमेजिनेशन एंड देन आई वर्क वेरी हार्ड. और वो मुझे वर्किंग हार्ड नहीं लगता था. बट ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट्स जो मैं अभी कर रहा हूँ, इट वॉज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग. और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इट्स हार्ड वर्किंग. आई एम नॉट giving up from it obviously, but mentally it's very difficult for me to survive sometime these days, because I'm not working on one project, and it's not even it is my imagination kind of, because I have pitched this story. But still, if you're working under this kind of fellowship, and उसमें ना एक डेडलाइंस होती है. यू नीड टू यू हैव कमिटमेंट. दैट्स वाई आई अप्लाइड फॉर दिस कि यार कमिटमेंट, डेडलाइन, चैलेंजेस, तो इट विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी, जिससे मैं सीखूंगा. इट विल फर्निश मी. येस, इट्स ट्रू. और मैं अभी भले मेंटली आई एम वेरी थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम लाइक स्टिल स्टक. बट मुझे पता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेलोशिप आई विल बी हैप्पी एंड आई विल से येस आई डिड इट. बट दीज डेज आर रियली difficult नहीं, but it's like not, I miss myself, I miss my old self when I एक लगता था कि यार I have time to do these things, but nowadays it doesn't feel the same. तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट करने का मतलब मेरा कहना ये है कि पैशन होता है सबका,
किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है. बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ रियलाइजिंग कि पैशन को भी हमें नर्चर करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है. लाइक अ लिटिल किड, यू हैव टू don't go too much deep into what you are doing. From my perspective, it's not a good thing. You need pauses, you need patience in life, you need some spaces to think about yourself, you need some time to introspect. तो मेरा कहने का मतलब है कि this I've been realizing from like last 1 year. So I tried this kind of strategy कि यार let's make it challenging, but it was not a very good move, I think. अब मैं बताता हूँ अबाउट दिस जैसे मैंने बताया कि आई वॉज वी वर प्लानिंग दिस कम्युनिटी इंगेजमेंट इवेंट जो हमें फेलोशिप के अंडर करना है. सो आज से लाइक 2 साल पहले वन डे आई वोक अप एंड आई थॉट कि यार लेट्स डू समथिंग. And I just created an Instagram account and named it as Kinnaur Film Society. It was a random idea, but after some days वो कुछ लोग जुड़े, we talked, एक WhatsApp group बना, लोग जुड़े. So I saw the interest in people. मुझे लगा कि people are really interested about this thing in Kinnaur. और बहुत सारे फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट किन्नौर से पहले ही बहुत कलाकार लोग हैं हमारे किन्नौर से, बट जब आप कुछ चीज़ करते हो तो बहुत मतलब वो भी जस्ट आई जस्ट ओपन एन अकाउंट. आई नेवर थॉट कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे. बट या दिस मंथ वी आर डूइंग किन्नौर फिल्म फेस्टिवल. इट वाज काइंड ऑफ माय ड्रीम. मैं जब फर्स्ट टाइम फेस्टिवल इसी साल गया हूँ, आई थिंक या मार्च में. एंड आई रियली लाइक द वे जब क्रिएटिव लोग, जब प्रोफेशनल एक साथ इकट्ठे होकर बातें करते हैं ना. So I wanted to make some like that kind of space. So doing all these things, Kinnaur Film Society, my personal filmmaking journey, this YouTube fellowship, और भी 2-3 चीज़ें हैं back of the mind. I don't remember these things, but constantly brain is hitting me from these things to do. और opportunities बहुत सारी है. And I am like कि करते हैं ना. Why don't we just do? But now I realize that sometimes you have to push yourself. This festival we are going to do in 22 of October after Diwali. तो ये हम सांगला में करने वाले हैं. खैर, the main point is कि ये सब करना and then I feel I miss myself in these days. So right now I'm like कि मुझे time चाहिए भाई. I need some time to think. I need some time to introspect. But obviously कहीं बार चीज़ें commitment base पर चलती है. And you if you are a director, you are the driver of your bus. You have to keep driving. आपके पीछे पूरी team है, आपके पीछे passengers बैठे हैं, और they also want to reach the destiny. But you are the driver and you will control that steering of life, of your film, of your project, anything you are doing. So from this commitment, I feel sometime कि it's थोड़ा सा pressure हो जाता है, थोड़ा सा pressurizing है. मतलब you have to drive the bus. पीछे लोग excited है, मतलब कर रहे, कोई क्या कर रहा है, मतलब with your vision in your bus, but you have to drive the bus. You have to keep driving. You can't say कि यार मैं अब थक जाओगे, but you can't say कि I need some time, because you have to reach the destiny and you have some deadlines. So seeing all this, I realized कि I miss my old self. First of all, I still don't know, not the मतलब है एक जो बच्चा आपके अंदर अपने संभाल कर रखा होता है ना, वो चीज़ें नहीं देखता है. Now I feel a little bit more into life, the real big life, philosophical life जिसकी लोग बात करते हैं, philosophering as Buddha said. So there is no way to escape from life. It's been always my thing to think and being curious about all these things, life, death, किताबें
पढ़ता हूँ, पढ़ी है, कोट्स पढ़े हैं, जो भी चीज़ें मैं समझता हूँ लोगों से पूछ के, बातचीत करके, लाइफ का एंड इज़ डेथ। मैं फिर वहीं चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे वही लगता है ना कि इफ़ आई एम डूइंग दिस टुडे, विल आई बी एबल टू डू दिस आफ्टर 10 years, 20 years? No, you don't know, because you will die, and you don't know when will you die, but you're going to die. So that thinking made me do it. But apart from all this, if you chill, और जब just बैठ के आप सोच रहे हो कि यार what I want to do, then you have nothing to do actually. I'm not saying it's all about giving up in life. मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ एक्चुअली, पर्सनल थिंग्स, पैशन, ड्रीम, इनका जो एक प्रेशर रहता है. सो आई एम थिंकिंग टू फेड अवे कम्प्लीटली. आई जस्ट वॉन्ट टू लॉस्ट समवेयर. मैं कहीं, ये होता है आई थिंक पीपल से कि माउंटेन्स में अगर आप रह रहे हो तो आप पहाड़ों को देख के गम भुला सकते हो. बाहर के लोग ऐसा कहते हैं. आई लव माई प्लेस. मैं सुबह खिड़की खोलता तो मुझे पहाड़ दिखते हैं. बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, it's not about a place, it's about your own place. मतलब जो प्लेस, जो जगह आप खुद बनाते हो. दिस इज़ माई रूम एंड आई वॉन्टेड टू, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस रूम लुक लाइक कि जहाँ बैठ के मैं काम कर सकूँ. एंड ये उसका आई थिंक 50% तो होगा ये रूम. बट ऑब्वियसली दिस इज़ द मैस, और ये मैस होते रहता है. मैं भी मानता हूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. ऑब्वियसली सब यही कहते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे. बट समटाइम यू जस्ट फील वेरी ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, एज आई एम फीलिंग राइट नाउ. द होल पॉइंट ऑफ दिस इज़ आई एम ट्राइंग टू से कि पैशन को ना संभाल के रखना होता है. पैशन में, एम्बिशन में, गोल्स में, ड्रीम्स में, सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. तो उनको संभालना होता है आई थिंक, जो मैं शायद नहीं कर रहा हूँ. इफ़ यू डू समथिंग टू मच, इट्स नॉट गुड फॉर यू. वो चाहे कुछ भी चीज़ हो. शायद आप खाना पसंद, मतलब सब खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई फूडी होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं. बट स्टिल eating too much is not good for our health ना. Same goes with everything I think. Passion भी आपको, you don't have to just keep doing this because कि आपका ड्रीम है, आपका you have to give some time to your passion to grow in itself. पैशन कहे है, आर्ट कहे, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है अभी कि I might stop for a while. एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ. मेरी उम्र ही क्या है, आई वॉन्ट टू, अभी जितने भी साल है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा. एज अ फिल्म मेकर, आई से कि आई एम अ फिल्म मेकर, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन लाइफ. एज अ 20-year-old, इट्स लाइक अ शिफ्ट फ्रॉम, जो टीनेज से आप एक अडल्टहुड में जाते हो, वो शिफ्ट इज़ वेरी, you keep learning from all these things. कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ भाई सही है ना, बट स्टिल इफ़ यू चेस टू मच हैप्पीनेस, सक्सेस एंड ड्रीम्स without being patient and giving yourself some time, it's not worth it at the end. You will lose everything. I think I will lose it if I will not preserve my passion. And what preserving means to me is just give yourself some time to think and introspect about this, कि क्या कर रहे हैं आप. कई बार होता है ना कि everyone is selfish in this world and everyone will push कि भाई ये करना, वो करना. Everyone will guide in life.
But at the end, listening to yourself is very important. लाइफ में जीने के लिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट नीड एक छत चाहिए, कहते हैं ना। हमारे पास छत है, मकान है, हमें खाना दिया जाता है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल वी मिस आर ourselves, right? So the I don't know ये conclusion इस वीडियो का क्या है, but I just wanted to say कि you need time. Whoever is listening, I'm not a big man trying to say something, trying to teach you something. I'm not a teacher. It's for me. I will आज से 10 साल बाद ये वीडियो उठा के देखूँ, मुझे लगा कि यार ये लेसन्स थे, है ना, बिकॉज इट्स माई वे ऑफ टेलिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज फ्रॉम वीडियोज़, है ना। जर्नलिंग, हाँ, आई लाइक टू राइट, बट primarily I will choose video to tell my story, a camera and my story. So this might be not for my subscribers out there watching. I don't actually want to share this with everyone, but I feel like it's important in this era कि आप वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर डालें। यूट्यूब ही नहीं, आप प्राइवेटली भी डाल सकते, बट I wanted to share it with the people and know your perspective about this. जो इंसान आपको दिख रहा है वो सेम नहीं है। मे बी आई एम सेटिंग हेयर, आई एम टॉकिंग फेक, मैं बहुत फेक तरीके से बोल रहा हूँ या कुछ फ़िलासफ़ी झाड़ रहा हूँ, बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू थिंक कि मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन स्किप द वीडियो, यू हैव राइट, यू कैन जस्ट क्लोज द वीडियो इन यूट्यूब एंड यू जस्ट गो अहेड, बिकॉज इट्स फॉर मी. Or whoever is listening to this, if there is someone listening to this, you can listen to this, it's on your choice. I'm not forcing you to watch this video, you know. I made this video for me. Yeah, so बातें बहुत है. Sometimes it feels like I'm talking to a camera, बट आई नो कि दिस कैमरा विल रिकॉर्ड समथिंग जो मैं आज से आने वाले 10 साल बाद देखूंगा और आई विल लर्न फ्रॉम इट. अभी भी ऐसा मेरे साथ होता है यार कि यू नो 1 साल पहले वीडियो देखी तो यार भाई ये कौन था, ये हु इज़ दैट पर्सन, ये क्या बकचोदी करी है. बट अभी इट फील्स लाइक कि यस, अभी भी फिर मैं 5 साल बाद चेंजेस आएंगे, परिवर्तन संसार का नियम है. आई विल सी माई वीडियो, आई विल सी माई सेल्फ फार, मतलब पहले 5 साल पहले कहा था और अब कैसा हो, तो इट विल स्टिल यू नो, मुझे याद रहेगा वो चीज़. आई विल रिमेंबर दोज थिंग्स एंड आई विल सी कि हाउ वाज माई चाइल्डहुड. दैट्स इट, आई थिंक.